What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday, 3rd of June and today was Sensex 1DT ahead of tomorrow's Sensex weekly expiry and the highly volatile intraday price action continue. Today, the markets opened with a gap down after giving a sharp short covering rally yesterday, and within the first 45 minutes, the markets actually reached yesterday's low. So there has been a strong tug of war between the DIIs and the FIIs. So FIIs are constantly selling our equity markets and DIIs are using all the SIP inflow to, prop the markets higher, and because of this, there is extreme levels of volatility, and on top of this, we are constantly getting news flow during our market hours. So when the markets broke the yesterday's low, it looked like there has been a clear-cut breakdown, but then the news comes that the finance ministry is thinking seriously about, revamping the LTCG and STCG rules, especially for the FIIs, and that suddenly shot up the markets, and Sensex rallied 1,000 points in a span of half an hour, and it was a hugely volatile markets. Sensex fell 1,000 points and shot up 1,000 points. Just to give you context, yesterday evening, the put options which were trading at 80 rupees made a high of 650, and today afternoon the call options which made a low of 1890 rupees, they made a high of almost 500. So this has been an option buyer's paradise and option seller's nightmare. Looks like option selling is practically dead, at least on an intraday basis. Alright, so tomorrow is Sensex weekly expiry, and in spite of all this chaos, we saw almost 150 point of straddle crush in the final 1 hour of market action, and finally जो straddle 750-760 का हाई मारा था वो क्लोज हुआ है 580 के आसपास, which means tomorrow most probably will be opening at somewhere between 450 to 500. अगर 450 मिला तो it is actually a better deal, but हो सकता है कि अगर 400 के नीचे 930 के पहले ट्रेड करना शुरू कर दे तो then again expect another treacherous dancing kind of a day for the option writers. But option buyers would be jumping around because इतने सस्ते में उनको प्रीमियम्स मिल रहा है. So in spite of a sharp recovery from the day's lows, India VIX still has spiked by almost 6-7%, and we saw a huge amount of selling in the IT index. IT index कल और परसों इतना ज़्यादा रैली किया था कि everybody was expecting, oh now the IT index will start moving and now it is the time of IT index. But today itself, majority of the IT heavyweights saw as low as 6-7% in red. So all that said, tomorrow expect another volatile expiry, and let's get to the terminal and let's plan. All right. सो डेली चार्ट पे यस, कल का जो लो है वो ब्रीच नहीं हो पाया है, एंड अगेन फ्रॉम 23,200 लेवल्स वी गॉट अ सीरियस अमाउंट ऑफ बाइंग प्रेशर. वेदर दिस इज अ प्राइस एक्शन बेस्ड बाइंग प्रेशर और वेदर दिस इज अ न्यूज बेस्ड बाइंग प्रेशर, वी डोंट नो, बट irrespective of whatever it is, we are getting a decent amount of support from this level. So again, until unless we see a close below 23,200 levels, this is again a good buying opportunity for Nifty on a positional basis. Even today's price action was pretty choppy, it was pretty weird. If you notice here, तो 5 मिनट में यू कैन नोटिस दैट मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे डे लो फॉर्म कर रहा था, वापस स्पाइक हो रहा था, डे लो फॉर्म कर रहा था, एंड फाइनली व्हेन दिस लो गॉट ब्रीच्ड देयर वाज अ ह्यूज स्पाइक इन द पुट ऑप्शंस विद इन दिस पॉइंट. लाइक 170 से लेके लाइक द ऑप्शंस विच आई वाज लाइक लुकिंग एट 170 से लेके 340 पे एकदम डबल हो गया, एंड फ्रॉम देयर द कॉल ऑप्शंस ऑलमोस्ट वेंट 5 टाइम्स हियर. सो टुडे इज नॉट इवन द एक्सपायरी डे. गामा इतना ज़्यादा रैम्पेंट होना नहीं चाहिए था, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट दिस कॉल अप मूव was brutal, where 2-3 मिनट के अंदर अंदर कॉल प्रीमियम्स डबल हो रहे थे एंड हाफ हो रहे थे. इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू बी एक्चुअली ट्रेडिंग. लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप आज ट्रेड किए होंगे तो. सो इन दिस environment, the better bet is to trade debit ratios. इधर आप डेबिट रेशियोज ट्रेड करना है या पूरा क्रेडिट स्प्रेड्स ट्रेड करना है, वेर यू विल नॉट गेट चॉप्ड आउट, और डेबिट स्प्रेड्स को भी आप ट्रेड कर सकते हैं. बेसिकली स्प्रेड्स को ट्रेड करो सो दैट यू डोंट एंड अप गेटिंग चॉप्ड, बिकॉज आई गॉट चॉप मल्टीपल टाइम्स. पहले यहाँ पे पुट्स पे ऑलमोस्ट पीक पे मुझे एग्जिट करना पड़ा, एंड देन कॉल्स पे यहाँ पे पीक पे एग्जिट करना पड़ा. सो टुडे वाज नॉट अ ग्रेट डे. इनफैक्ट लाइक दीज काइंड्स ऑफ चॉपी प्राइस एक्शन वेयर सडन ऐसे जो रिवर्सल आता है, स्पेशली आफ्टर फॉर्मिंग अ क्लीन ब्रेकआउट. यहाँ पे क्लीन ब्रेकआउट होने के बाद व्हेन द मार्केट्स केम हियर, आइडियली इट शुड बी अ सपोर्ट ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड सम सॉर्ट ऑफ अ कंटिन्यूएशन, बट यहाँ पे एकदम वापस आ गया, एंड देयर वाज अ ह्यूज IV स्पाइक एज वेल. इफ यू नोटिस,
ठीक है, मार्केट्स नीचे आ रहा था, इट वॉज अ प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग काइंड ऑफ अ रैली yesterday एंड सडनली मार्केट्स नीचे जा रहा था. येस, द IV spike and the sudden repricing of options is understandable, but even after the market started breaching higher, there was an IV spike with that up move which was pretty surprising. ठीक है, you can notice that जो straddle कल 360 के आसपास बंद हुआ था, तो it opened at 400, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, and throughout the day it kept chopping and थोड़ा बहुत डीके हो गया, and throughout, but when the up move started and when there was like this call side blast, again the IVs actually spiked back up. and Sensex पे तो ये जो बिहेवियर है वो और भी प्रोनाउंस था. आप देख सकते हैं कि व्हेन दैट अपमूव स्टार्टेड समवेयर अराउंड 1 o'clock 1:30, तो उसके बाद फिर से एक और बार ऑलमोस्ट 660 से लेके 750 तक ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट का एक स्पाइक देखने को मिला. एंड इन द लास्ट 1 hour इतना लीनियरली प्रीमियम्स मेल्ट हो गए एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट ओ इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है तो लाइक ऑब्वियसली लाइक प्रीमियम्स माइट एंड अप होल्डिंग, बट नो, द IVs गॉट डम्प्ड एंड वी आर सीइंग द क्लोज ऑफ ऑलमोस्ट 585 पॉइंट्स. सो कल के लिए अगेन wide range day today and multiple reversals and sharp price action. So tomorrow also it's not going to be an easy expiry, and couple it with some news, some of the other form of news that is coming during our market hours. It's not going to be an easy expiry, like you have to wait for the markets to come to your levels, and in spite of you waiting for the markets to come to your levels, there is a very high probability that you'll get chopped out. So मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, पुट्स ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट्स ऊपर जाने वाला है, एंड मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे चॉप करते करते आया, एंड इन दिस फाइनल कैंडल व्हेन आई गेव अप दैट ओके यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है, दैट इज व्हेन द मार्केट स्टार्टेड रिवर्सिंग, एंड व्हेन द मार्केट्स केम हियर आई रियलाइज दैट ओके लाइक वापस ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे एक रीटेस्ट के लिए आया है एंड इट माइट कंटिन्यू, बट उसके बाद डायरेक्टली मार्केट्स कंप्लीटली वापस रेंज के अंदर आ गया, एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिनेरियो दे दिया, एंड वहाँ पे भी मुझे ऑलमोस्ट पीक पे मेरा लॉस बुक करना पड़ा. ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी possible kind of a scenario. I was talking to one of the platform owners, like जो option trading platform का back test work test बनाते हैं, तो he was telling the India VIX between 16 to 20 levels जो है, it is one of the worst VIX ranges to be actually trading. तो अगर 25 के ऊपर जाता है तो then yes that is a good range, and अगर 14 के अंदर रहता है that is also a good place to actually be trading from short side, basically short wall side, short gamma side trade करने के लिए. Either below 14 और above 25 is the best range to trade, and 16 to 20 के बीच जो है it is extremely difficult, because premiums जो है it is not even प्राइजिंग इन एनी सॉर्ट ऑफ टेल रिस्क, सो स्क्यू ज़्यादा रहता नहीं है, बट एट द सेम टाइम इंट्राडे में बहुत ज़्यादा मीन रिवर्शंस एंड बहुत ज़्यादा शार्प मूव्स हमको आता रहता है, एंड द VRP रिजीम इज़ एक्चुअली नेगेटिव. सो ज़्यादा हो गया थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा मैं टेंजेंशियली चला गया, बट या टुमारो again expiry के लिए this low will be acting as some sort of a floor, and this यहाँ पे जो high है which is 75,200 level, that will be acting as some sort of a ceiling. Now depending upon where the market starts to trade somewhere around 10 o'clock के आसपास markets कहाँ पे रहने वाला है उसके basis पे depend करता है कि like market इधर इस रेंज पे रहने वाला है या इस रेंज पे रहने वाला है. सो अगेन यस, सम माइट से दैट ओ कल जैसे ही आज भी मतलब एक अच्छा वाला अपमूव आया है आफ्टर 12:30, एंड यू कैन नोटिस द टाइम ऑल्सो, राइट, विच इज there is a particular institution that is coming and buying here. You can notice that exact 12:30 पे अपमूव चालू हो गया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि exact 12:30 पे अपमूव चालू हो गया. सो इट इज़ पहले लाइक 1 o'clock के आसपास आ रहा था, उसके बीच 1:30 के आसपास आ रहा था. सो दिस इंस्टीट्यूशंस हैव फाउंड न्यू वेज ऑफ पुशिंग द मार्केट्स टू देयर बिम्स एंड फैंसीज. सो सिंस वी आर इन दिस टाइट टग ऑफ वॉर बिटवीन FIIs एंड DIIs, and DIIs even get instructions from the governments that oh you can't let the markets fall. तो बेसिकली LIC होने दो या दूसरा जो DIIs है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक डायरेक्टिव जाता है मार्केट गवर्नमेंट से कि आपको मार्केट्स को गिरने नहीं देना चाहिए. तो यूजुअली क्या करता है कि लाइक व्हेन द FII सेल इन द मॉर्निंग एंड गेट द मार्केट्स डाउन, तो DIIs विल सडनली कम एंड पंप द मार्केट्स अप. सो lot of macro kind of a gaming that is happening in the markets, and that is what is causing a lot of choppy kind of a price action. Probably a regime change, or probably this is what it's going to be for the next foreseeable time, we don't know. So कल के लिए दो चीज़ें हैं. अगर मार्केट गैप अप खुलता है, स्पेशली आज का हाई के ऊपर अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है एंड ये हाई को अगर 10 o'clock के पहले तोड़ देता है, तो देन एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू रीच समवेयर अराउंड 75,200 लेवल्स, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ दिस अप मूव 75,000 कॉल राइटर्स जो है उनको ज़्यादा आज पेन नहीं मिला है, बिकॉज आफ्टर 2:30 2:45 देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट
डीके इन द कॉल्स। तो अगर 75,000 कॉल राइटर्स को थोड़ा बहुत परेशानी करनी है एंड उनके स्टॉप लॉसेस को उड़ाना है, तो देन मार्केट हैज़ टू गैप अप हियर एंड देन सी सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग रैली हियर, एंड उसके बाद मार्केट्स कहीं ना कहीं 75-250 के आसपास एक रेजिस्टेंस ले सकता है। सो इन दैट केस अगर मार्केट्स इसके आसपास अगर ओपन होता है एंड प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट देता है, तो देन गो इन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस एक्शन एंड प्रोबेबली ट्राई टू मीन रिवर्ट द मार्केट समवेयर अराउंड 75,200 levels. So in spite of this, even this looks like a very small range, right, compared to whatever this इतना वाइड रेंज डेज जो बन रहा है उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी छोटा सा रेंज लग रहा है। बट इफ़ यू नोटिस दिस इज 75,800 एंड दिस इज 75,400, सो दिस इज अ 600 पॉइंट रेंज। तो स्ट्रैडल हमको मिल कितना रहा है, समवेयर अराउंड 450, 430, 400 के आसपास मिलने वाला है, समवेयर अराउंड 930। सो इन स्पाइट ऑफ मार्केट्स स्टेइंग इन अ स्मॉल रेंज, एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पेन इफ यू आर स्पेशली एन ऑप्शंस राइटर। ठीक है, नाउ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है एंड देन प्राइस एक्शन के थ्रू इसको ब्रीच कर देता है, तो अगेन वी कैन एक्चुअली गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। अगर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, देन वेट फॉर द मार्केट्स टू कम नियर समवेयर अराउंड 74,900 लेवल्स, जहाँ पे आप एक मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, विच इज अ गुड रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी। नाउ अगेन जस्ट लाइक एस्टरडे मैंने कहा था ना, अगर मार्केट इस स्विंग के नीचे अगर ओपन हो जाता है, तो देन डेफिनेटली ये लो के आसपास आएगा। एंड ये लो के एक्चुअली लाइक यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ तो इवन आई वॉज इंटरेस्टेड टू एक्चुअली शॉर्ट द मार्केट्स बिकॉज यहाँ पे आना चाहिए था, बट विद इन द फर्स्ट 3 minutes इटसेल्फ द मार्केट्स ऑलमोस्ट ट्रैवल्ड, जो ट्रैवल करना चाहिए था उतना ऑलमोस्ट ट्रैवल कर लिया था। तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट ट्रेड लेता तो मेरे लिए टारगेट काफ़ी छोटा हो जाता एंड थोड़ा भी मतलब चॉपी हो जाता, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। दैट इज वाई आई वेटेड फॉर दिस लेवल एंड टुक द पुट शॉट्स, बट अगेन दोज ऑल्सो हिट माई स्टॉप लॉस। दैट ऑफ वन ऑफ दोज डेज वेयर nothing you do seems to have worked. ठीक है, सो अगर सिचुएशन फिर से डाइसी होना चाहिए, तो देन मार्केट्स इस लेवल है जो है 74,100 लेवल है, उसके नीचे ओपन होना पड़ेगा। एंड अगर उसके नीचे ओपन होता है तो देन 73,700 के आसपास फिर से मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है एंड 74,000 विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ मैग्नेट। सो 74,300 एंड 73,700 के बीच मार्केट्स वोलेटाइल रह सकता है एंड कहीं ना कहीं 73,900 से लेके 74,100 के बीच, ये 200 पॉइंट के बीच मार्केट्स एक्सपायर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है अगर मार्केट्स में गैप डाउन ओपन सिनेरियो, स्पेशली इस लेवल से थोड़ा 74,000 के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है। तो नाउ अगर एक बड़ा गैप अप खुल गया, लेट्स से इसके ऊपर अगर मार्केट गैप अप खुल गया, तो एज आई सेड वेट फॉर द मार्केट्स टू कम नियर द हाई ऑफ दिस सेलिंग कैंडल। यहाँ पे जो सेलिंग कैंडल जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं। व्हेन आई से यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, इफ़ यू आर अ नेकेड ऑप्शंस ट्रेडर, बेसिकली आप नेकेड कॉल्स बेचते हो या नेकेड पुट्स खरीदते हो, देन यू हैव टू बी मोर प्रिसाइज। बट अगर आप दूसरा स्ट्रक्चर्स को ट्रेड करते हो, जैसे कि लाइक आप रेशियोज ट्रेड करते हो या हेड स्ट्रैटेजी स्प्रेड्स ट्रेड करते हो, तो देन यहाँ पे आप आपके लिए एक बैंड बन सकता है, उस बैंड में आप कहीं पे भी आप एंट्रीज ले सकते हैं। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन 2 PM का पोस्ट, even though the markets will be moving just in 100 points up or down, because the straddle will be just trading for like 150 rupees, it's going to be extremely difficult to manage the moves after 2 o'clock. So size less and wait for the spikes and then enter your positions. ठीक है, so not a good day for me. Let me know in the comments आपका दिन कैसा रहा, and I'll see you after tomorrow's expiry. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.